Hello everyone, welcome to my channel Way to Physics. I am Sandhya and now in this part we will be solving 2016 paper part 3rd. Okay? So in this part we will be solving questions 31 to 45. Okay? So let's start. Question number 31. It says an alpha particle is accelerated in a cyclotron. It leaves the cyclotron with the kinetic energy of 16 MeV. The potential difference between the d electrodes is this. The number of revolutions alpha particle makes in its spiral path before it leaves the cyclotron. अब देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारे पास साइक्लोट्रॉन के लिए क्या होती है, दैट इज 2qnV. ओके, एंड d electrodes है, that means charge is what, that is 2 electrons, which is 3.2 into 10 raised to power minus 19 coulomb of alpha particle, right? Now further, according to this, voltage is given to us, that is 50 into 10 raised to power 3. Kinetic energy is what, that is 16 MeV, mega electron volt, right? Now we have to find the number of revolutions, which is we have to find n. Now upon putting values kinetic energy by 2qV, we can calculate it by putting values and it comes out to be 80. Okay, देखो ये calculation part है, values put करके, and it is 80. Okay, now further, let Vi be ith component of a vector field V which has zero divergence. If del I del by del xj, the expression for this is equal to, expression given to us is this, L M K del j del I V M, right? So according to this, first one is what, that is let it be cyclic order. In this cyclic order it will be converted itself. Now it will be also in cyclic order KLM del J del I VM. Okay, and according to definition of this, epsilon is what, del IL, because K is what, L, then it will be del JM, right, minus del IM and then del JL. Okay, which is further del J del IVM. Okay, it is given to us in L here itself, so it will be L and it will be L also. Okay, डेफिनेशन में यही होता है. देखो हमारे पास K और K तो एज इट इज है, ठीक है. एक बार I L और JM एंड देन IM एंड देन JL, ठीक है, क्रॉस में करना है. अब देखो ये कितना होगा हमारे पास, दैट इज डेल I, ये गिवन है ना हमारे पास, डेल I डेल बाय डेल एक्स जे, देन इट विल बी डेल I डेल J डेल I VJ माइनस डेल J VI, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि देखो डेल IL है, दैट मीन्स IL इक्वल होगा, दैट इज JI आपका इतना बन जाएगा J की फॉर्म में, और IM और ये इक्वल है, तो ये हमारे पास ये बनेगा, ठीक है. अब ये फर्दर कितना बनेगा हमारे पास, ऑल्सो डेल I ऑफ डेल J बाय VJ, ओके, माइनस del square J VJ. So it will comes out to be minus del square J, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, del square J VI. ओके, रिवर्स में हो जाएगा ना अब इसका, तो ये कितना आ जाएगा, del L square itself, क्योंकि J हमारे पास जीरो आ जाएगा, ठीक है. तो आपके पास ये D ऑप्शन इज करेक्ट वन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The direction of for a scalar field at point P112 is. okay, अब देखो डायरेक्शन क्या होता है हमारे पास, del F at 112. ओके, यही हमारे पास डायरेक्शंस होगी ना, हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में करते हैं तो उसको हम डाइवर्जेंस उसमें लगेगी.
एंड डेल हमारे पास क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, फर्दर ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर. Okay, so del by del x is what, 2 twice 2 cancel here itself, so it will be x minus y I cap plus, sorry, minus x j cap and then plus 2z k cap at point 1 1 2. So by putting values here, 1 minus 1 itself 0, then minus j cap plus 4 k cap. Okay, so according to this, now by j cap plus z, 2z is it, okay, z square by 2 itself also, so it will be further z also, then it will be 2. Okay, now taking 1 plus magnitude itself, so it will be 4, that is minus j plus 2k divided by root 5, that is matches option number B, right? Okay, B option is correct one. Now next question. Sigma x, sigma y, sigma z are Pauli matrices. The expression is such. Now देखो 2x sigma y plus sigma y sigma x, ठीक है. अब ये देखो तीनों हमारे पास, दोनों में क्या होगा आपके पास, ये वाला आपके पास सिग्मा x सिग्मा y, एक हमारे पास अगर ये रखते हैं तो ये कितना बनेगा, 2 आयोटा सिग्मा z एज इट इज, ठीक है. और माइनस सिग्मा y सिग्मा x मीन्स आयोटा सिग्मा, क्योंकि हमारा साइक्लिक होता है ना, एक्स वाई से जाएगा तो एज इट इज जेड और वाई एक्स से जाएगा तो माइनस जेड, ठीक है. तो ये कितना बनेगा आपके पास, आयोटा सिग्मा जेड. ओके, दैट मीन्स योर सी ऑप्शन इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल ऑफ मास m 0.1 kg is initially at rest at origin. It starts moving with uniform acceleration. The action s of particle in units is. action देखो हमारे पास क्या होता है, a से भी हम इसको डिनोट करते हैं, s से भी डिनोट करते हैं, which is Laplace integration with respect to t1 to t2, and we know that Laplace is what, that is kinetic minus potential. Okay, so according to this, kinetic can be calculated half mv square, right? Further it will be half m. Now see, distance is s n given and t given, a given, so upon in the equation, that is s equals to ut plus half at square, it will comes out to be v is equals to u plus at as well. Then it will be putting values here, that is 0.1 and it will be 10, sorry, initially it will be 0, from starts from origin, right? So it will be 0 plus acceleration is 10 and t is what, that is distance difference is 2, or you can say, first of all let's t itself. Okay, then it will be 5t square. Okay, now potential itself, then it will be f dx, which is m a dx, right? Minus m a dx will be velocity in itself, so it will be m minus m is what, 0.1 itself again, right? And acceleration again, that is from 0 to 2, it will be 5t square minus of minus 5t square dt. Upon solving this, so it will comes out, that is minus 5t square. Okay, okay, just hold on. Upon solving acceleration only, it will comes out to be, that is minus 5t square. Okay, so now L equals to t minus v, that is s is equals to t minus v dt itself from 0 to 2, then it coming, that is 10t cube by 3, 0 to 2, so it will be, that is 26.67. so this is the answer. Okay, देखो सॉल्यूशन जो मैथमेटिकल पार्ट है ये तो देखो अब आप उससे कर सकते हो ना, कैलकुलेटर से. ओके, सो क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी देखो कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर साथ में रखो और देखते रहो. ओके,
a periodic function of period 2 pi is defined in interval, right? अब आपके पास क्या गिवन है, देखिए इंटरवल आपके पास -1 पाई से -π से 0 और 0 से पाई 1 में है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म में होता है, दैट इज a0/2 प्लस फोरियर सीरीज बतानी है, राइट? दिस विल बी n1 टू इन्फिनिटी an cos n pi x प्लस n equals to 1 to infinity bn sin n pi, sorry, nx, right? It will be cos nx as well. Okay, let me write it, nx x. okay, so further अब देखो हमारे पास क्या है, ये -1 और 1, अगर हम इसका प्लॉट करते हैं then 0 to -π to 0, it's a -π, then it will be pi. So at it will be -1 and then 0 to pi it will be +1, right? So that will be your odd function, right? So according to odd function we know that a0 equals to 0 as well as an equals to 0. So only sign term exists, that is C and D option gets eliminated here itself, right? Now further for calculating bn, देखो हमारे पास एक प्रीवियस क्वेश्चन भी आया था इवन फंक्शन के लिए, राइट? और यहाँ पे हमारा ऑड फंक्शन से रिलेटेड है, तो देखो ये हमारे पास होता है 1/π -π से पाई f of x sin nx dx, देन इट विल बी -π से 0 हमारे पास है माइनस sin nx dx एंड देन 0 to pi it itself is sin nx dx. Okay, so upon solving this we got it as 2/π 1/n 1 minus -1 raised to power n. देखो क्या होता है, cos n pi is what, that is -1 raised to power n. ओके, तो यहाँ से हमने ये चीज कैलकुलेट कर ली। अब इसके पास देखो क्या फॉर्मूले आ रहे हैं, अगर वो हमारे पास इवन है देन इट विल बी 2, दैट इज 4/πn, सॉरी n अगर ऑड है तो इसका मतलब ऑड है तो वो ऐड होगा, देन हमारे पास 4/πn आएगा। ओके, और अगर ये हमारे पास इवन है तो वो तो 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो वो आपके पास 0 आएगा। ओके, सो अब देखो ऑड वाली टर्म्स हमारे पास आएंगी, राइट? तो देखो x 3x/3 5x/3, अब नेगेटिव देखो कैसे आ रही है, माइनस साइन के अकॉर्डिंगली, राइट? तो देखो साइन अब इसमें हम फर्दर पुट करते हैं तो आपके पास ये नेगेटिव में तो देखो कोई नहीं आ रही है ऐसे, है ना, ये आ रहा है, एक प्लस आ रही है एक माइनस आ रही है, बट हमारी ये सारी पॉजिटिव्स आएंगी, राइट? सो दैट विल बी योर बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, atoms which can be assumed to be hard spheres of radius r are arranged in FCC lattice with lattice constant a such that each atom touches its nearest neighbors. Take the center of one of the atom at origin, another atom of radius r without distorting the lattice is the maximum value of r by r is what, right? अब देखो हमें कितने में बोला है, ये 0 से पॉइंट a/2 से 0। ओके, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका, देखो अकॉर्डिंग टू क्यूब, राइट? a/2 हमारा कौन सा है, y एक्सिस के अलोंग, ये हमारे पास x है, ये y है, ये z है। ओके, सो a/2 y एक्सिस के अलोंग, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ हाफ में, ओके, और बाकी दोनों 0 है, तो मतलब y एक्सिस पे ही लाई करेगा, मीन्स ये वाला जो बैक वाला है आपके पास यहाँ वाले पे। ओके, बाकी इस साइड हमारे पास ऐसे है ना। तो अब देखो a आपको दैट विल बी, नाउ देखो लेटिस पैरामीटर्स, ठीक है, लेटिस पैरामीटर्स क्या आएंगे हमारे पास, 2r + 2r, राइट? इसी फॉर्म में आएंगे क्योंकि रेडियस क्या है हमारे पास, कैपिटल R, और रेडियस है हमारे पास स्मॉल r, जो गिवन है ना, देखो क्या है, स्फीयर ऑफ रेडियस r और FCC लेटिस a एंड टेक द सेंटर ऑफ वन ऑफ द ओरिजिन एंड अनदर एटम ऑफ रेडियस r। ओके, सो दैट मीन्स दिस,
Now diagonal for each face will have 4 atoms, right? So according to this, root 2a equals to 4r. So which will be equals to, that is r is what? That is a root 2 by 4. So putting values here, we got it as a 2 root 2a by 4 plus 2r. Now further it will be, that is, upon solving this we get 2r equals to a minus 2 root 2a by 4. Okay, so upon solving this we get it r as 4 minus 2 root 2 upon 8 into a. Okay, and in r terms we can a root 2 by 4. So by calculating ratio itself here, then it will be, by putting values, it is, that is root 2 minus 1, which is 1.414 minus 1, that is 0.414 itself. Okay, up to 2 decimal means 0.41. Okay, next one. In an inertial frame of reference S, an observer finds two events occurring at the same time at coordinates xi equals to 0, x1 equals to 0 and x2 equals to d. A different inertial frame S dash moves with velocity v with respect to S along the positive x-axis. An observer in S dash also notices these two events and finds them to occur at t dash, t1 dash and t2 dash at positions x1 dash and x2 dash respectively. If delta t dash is t2 dash minus t1 dash and delta x dash is x2 dash minus x1 dash, ये तो definitely होता है हमारे पास, and gamma is this, which of the following statement is correct? Okay, now see, delta x is what? x2 minus x1 itself, right, which is further d, and delta t is what? That is t2 minus t1. अब ये same time पर बोल रहा है तो कितना? 0. Okay, अब देखो डेल्टा x डैश क्या होगा हमारे पास? डेल्टा x लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे ना, v डेल्टा t इंटू गामा एंड डेल्टा t डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा t माइनस डेल्टा x इंटू वी बाय सी स्क्वायर इंटू गामा. ओके, सो अब देखो वैल्यूज कैसे आएंगी हमारे पास. अगर आपको ये गिवन है तो ये डेल्टा टी डैश आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस डी वी बाय सी स्क्वायर गामा, क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू है डेल्टा टी 0 है, डेल्टा एक्स ये डी वी बाय सी स्क्वायर गामा आएगा. ओके, सो दैट मैचेस योर ऑप्शन नंबर सी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The energy versus wave vector E के relationship near the bottom of a band of solid can be approximated as, where the lattice constant is this, the value of A and B are this respectively. At the bottom of conduction band, the ratio of effective mass of electrons to mass of free electrons is. अब देखो हमारे पास रेशियो कितना होता है? इफेक्टिव मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मास, राइट. ये देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास ये होती है एच कट स्क्वायर बाय, ये देखो हमने किया भी था ये वाला फॉर्मूला, डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर अपॉन एम ई. ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके पास? देखो पहले ई कितना गिवन है हमारे, ए होल स्क्वायर प्लस बी ए होल 4. ठीक है, तो देखो ये ए स्क्वायर 2k प्लस 4b a4 के क्यूब. ठीक है, ये ई डैश है और ई डबल डैश कितना आएगा के की रिस्पेक्ट में? दैट विल बी 2a स्क्वायर प्लस 12b a4 के स्क्वायर. ओके, तो ये चीज यहाँ पे हम पुट करेंगे. ओके, सो बाय दिस कितनी आ गई देखो, एच कट स्क्वायर बाय एम ई इंटू 2a स्क्वायर प्लस 12b a4 के स्क्वायर. ओके, अब देखो a की वैल्यू आपको गिवन है, राइट, और हमारे पास अब ये a और b की फॉर्म में गिवन है ना. अब देखो बॉटम पे कंडक्शन बैंड में हमारे पास क्या होता है? k 0 होता है. ठीक है, k 0 होता है तो इसका मतलब ये भी टर्म आपकी 0 हो गई, दैट इज एच कट स्क्वायर बाय 2me a स्क्वायर. ओके, सो ये वैल्यूज रखने पे देखो वैल्यूज ऑफ ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, बट बी की तो हमें नीड ही नहीं पड़ी, तो ये आपके पास इतना आएगा. अब इस वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा ये 0.22. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन वैक्यूम इज गिवन बाय EZT equals to EZ0 cos
के जेड माइनस ओमेगा टी आई कैप पॉइंटिंग वेक्टर फॉर वेव इज। अब देखो पॉइंटिंग वेक्टर हमारे पास क्या होता है, पहले तो ये देखो कि के क्रॉस ई इक्वल्स टू ओमेगा म्यू नॉट एच, ओके, और एस होता है हमारे पास ई क्रॉस एच, ओके, और सी होता है 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट या सी स्क्वायर बोल सकते हैं, ओके। सो देखिए ई कितना गिवन है हमें, ई गिवन है आपको आई कैप में, राइट, और के हमारे पास क्या है जेड में, तो हम ई क्रॉस जेड करेंगे, दैट इज के क्रॉस ई करेंगे, दैट विल कम्स आउट टू बी योर ओमेगा म्यू नॉट एच, राइट। तो हमारे पास एच कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1/ओमेगा म्यू नॉट, ठीक है, और कितना है नीचे ई नॉट एज इट इज, और कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी के क्रॉस आई, राइट। सो के क्रॉस आई करने पे आपका कितना आएगा, ये जे कैप, तो ये हो जाएगा कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। अब ये ओमेगा, ओके, इसको एज इट इज रहने दो अभी, ठीक है, और एस आपके पास क्या है ई क्रॉस एच, देन हम ई क्रॉस एच करेंगे, सो इट विल कम्स आउट टू बी ई नॉट स्क्वायर बाय सी म्यू नॉट कॉस स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी के कैप, ओके। सो अब देखो c की वैल्यू अगर आप रखते हो दैट विल बी रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, देन इट विल बी comes out to be in this form, okay। So answer is that c epsilon naught e naught square cos square kz minus omega t k cap, okay। So this is the answer that matches your option number D, okay। देखो मेन फॉर्मूलेज देखो, ओके, अब k क्रॉस i से किया और यहां से निकाला है ना। अब देखो कंसीडर अ सिस्टम हैविंग 3 एनर्जी लेवल 0 2e 3e विद रिस्पेक्टिव डीजेनरेसी, देखो कितनी कितनी डीजेनरेसी है, दैट मीन्स हियर इज 2e की हमारे पास फर्दर 2 एंड 3e इज व्हाट विद डीजेनरेसी 3, ओके। नाउ 4 bosons of spin 0 have to be accommodated in these levels such that total energy of system is 10e, राइट, 10e होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास डीजेनरेसी अकॉर्डिंगली n1 n2 n3 n4 कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, राइट, सॉरी n4 नहीं 3 ही है ना हमारे पास, तो ये 4 के इक्वल होना चाहिए, दैट इज अगर आपके पास ये 0 करते हैं एंड दिस विल बी 2e, क्योंकि यही हमारे पास ये 0 के लिए, ये 2e के लिए, और n3 कितना है 3e के लिए, ये 4 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे बनेगा, दैट विल बी 2n2 प्लस 3n3 इक्वल्स टू 10। अब इसके लिए देखो क्या क्या सिचुएशंस है, n2 n3, अगर n2 0 है देन इट विल बी 10/3, और अगर n3 0 है देन इट विल बी 5, n3 0 रखते हैं तो ये 5 बनेगा, राइट, बट हमें इसकी नीड नहीं है, हम 1 पे कितना होगा ये 8/3, ठीक है, 2 पे होगा ये 2, 3 पे 4/3 एंड 4 पे 2/3। सो हमारे पास कितने रिस्पेक्टिवली में, देखो ये बाकी सिचुएशंस ऐसे हो रही है, राइट, तो ये 2 2 जो है हमारे पास द नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी डन, राइट, 2 and 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो 2 and 2 है तो इसका मतलब n1 0 और n2 and n3 2 2, तो हमारे पास बोसोन्स के लिए, माइक्रोस्टेट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज व्हाट ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल gi माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल, राइट। सो अकॉर्डिंगली दिस, अगर हमारे पास ये देखिए पहले कैसे पुट करते हैं हम, पहले 1 फैक्टोरियल अकॉर्डिंगली, देन 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, राइट, इन 2, क्योंकि और सिचुएशन है 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इन 2 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, राइट। So it will be 1 into 3 into 6, that will be 18. So 18 ways will be there, okay। Now further Lagrangian is given to us, which of the following quantity is conserved। अब देखो Lagrangian कितना given है, देखो ये तो ना सीधे देख के करने वाले क्वेश्चंस है,
ऐसे टाइप के, क्योंकि देखो इसमें क्या है, जो क्वांटिटी का थीटा, अगर थीटा है, थीटा डॉट प्रेजेंट है, दैट मीन्स दिस इज कंजर्व्ड। और अगर फाई है आपके पास और फाई डॉट नहीं है, तो इसका मतलब पी फाई हमारा क्या है, साइक्लिक, राइट। तो अब देखो पी फाई डॉट अगर आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मीन्स पी फाई आपका कंजर्व्ड रहेगा। दैट मीन्स डेल एल बाय डेल फाई डॉट, ये कितना आएगा आपके पास, विल बी एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट, राइट। तो यही आपकी क्वांटिटी क्या होगी, कंजर्व रहेगी। और अगर एम एल जी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये आपका कॉन्स्टेंट्स हो गया साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट, दैट इज ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Proton and alpha particles of equal initial momenta are scattered off a gold foil in Rutherford scattering experiment. The scattering cross section for proton on gold and alpha particle on gold are sigma f and sigma alpha respectively. Sigma p. Then the ratio of sigma alpha and sigma p is. Okay. Now you know that Rutherford cross scattering is what, that is sigma n n L z square k square e square divided by 4r square kinetic energy whole square, then sine 4 theta by 2. Okay, since momentum is nucleus equal, then it will be sigma is directly proportional to z square. So that will be sigma alpha by sigma p is what, that is alpha is what, 2he4, then it will be 4 by proton for 1 is 1, that is 4. Okay, now further, for digital circuit given below output x is. अब देखो इसमें क्या करो ना, आप इसको y मान लो, इसको z मान लो और x फर्दर डिनोट कर दो, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपके पास y कितना है आपके पास a नॉट, राइट, z कितना है आपके पास, और गेट है ये, तो ये b प्लस सी। अब x कितना आना चाहिए आपका, y डॉट z होल बार, मीन्स y बार प्लस z बार। तो a बार का बार करिए प्लस b प्लस सी होल बार। अब ये देखो a बार का बार a एज इट इज, प्लस b बार प्लस बी सी करोगे तो कितना आएगा, b बार इंटू सी बार, राइट। तो कितना आ गया ये आपके पास, a प्लस बी बार सी बार, राइट। तो बी सी बार नहीं आना चाहिए। अच्छा देखो, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या आना चाहिए, अगर आप ये देखो, ये वाला ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अगर इसको सेपरेट करोगे तो ये वाला प्लस बन जाएगा और बी प्लस बी होल बार बन जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स योर बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन। The Fermi energies of two metals X and Y are 5 electron volt and 7 electron volt, and their Debye temperature are 170 Kelvin and 340 Kelvin respectively. The molar specific heats of these metals at constant volume at low temperature can be written as this, and this are constants. Assume that our thermal effective mass of electrons in two metals are same. Which of the following is correct one? Okay, now you know that molar specific heat can be given by Cv is pi square n ab square n a square n a by 2 e f, okay, into T plus 12 pi 4 n a k b by 5 t d cube t cube. Okay, so that means it is alpha t gamma t से gamma t plus a t cube, that is gamma is inversely proportional to EF, right. And further upon solving this, a will be inversely proportional to TD cube. Okay, so देखिए for x and y it will itself comes out as gamma x and gamma y
then 1 by EF x upon 1 by EF y EF y EF x, which is 7 electron volt given 5 electron volt, which is 7 by 5, and AX by AY is what? Inverse also, so that will be TD y upon TD x whole cube, right? Cube लिख दीजिए. Then it will be 340 by 170 whole cube, which is further 2 cube, that is 8. Okay, so this is the answer, and that matches your 7 by 5 and 8. Math is question option A. Okay, so देखिए पार्ट 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया. ओके, नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं. ओके, थैंक यू.